جدا ہونا پڑے گا۔ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی، لیکن حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام واقعہ آپ سبھی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے باہر نکال دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دن رات وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما دے۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹے کی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجئے۔ آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 84 سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ایک بوڑھے باپ کو 84 سال کی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے، اسے چومتے اور کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور مذاق کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خود سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کو کہاں بھیجنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی لیے وہ تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی بچوں کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنی بیوی بچوں کو ڈالنا ہے۔ اگلے دن صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ کو، بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔
दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहाँ तक कि 1 महीने के सफ़र के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की ज़मीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहाँ तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुँचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊंट रोका तो वो वही जगह थी जहां आज काबा बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आता था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोकते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप अपनी बीवी बच्चे को इसी जगह उतार दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हज़रत इब्राहीम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इब्राहीम, अपने बीवी बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ऐ जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना, मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपने बीवी बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूँ, पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा भी या नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियाँ जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपने बीवी बच्चों को इस छोटे से घर में बिठाकर अपने ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। शोहर को जाता देख बीबी हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मैं और मेरा बच्चा हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब देते कि तभी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब ना दें और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाएं। दोस्तों, आप उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके तो देखो कि 84 साल में एक बेटा मिला जो बुढ़ापे का सहारा बनता और आंखों की ठंडक होता, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता। लेकिन आज ये बूढ़ा बाप अपने बच्चे को ऐसे वीरान इलाके में छोड़कर जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट चलता जा रहा था और बीबी हाजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना कि ये हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने इस बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हज़रत हाजरा रोते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये बातें, ये सवाल करती जा रही थी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि खामोश रहना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश थे। अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की ये हालत देखकर दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन अल्लाह की खातिर जुबान खामोश थी। बीबी हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतना खामोश क्यों हैं?
हमें बताइए तो सही कि अब हम क्या करेंगे। इसी तरह हजरत हाजरा अपने शोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर तक दौड़ती रही और अपने शोहर से बार बार सवाल करती रही, लेकिन हजरत इब्राहीम खामोश थे। आखिर एक जगह पहुंचकर हजरत हाजरा जब बहुत ज़्यादा थक गई तो अचानक ख्याल आया कि मेरे शोहर तो अल्लाह के नबी है और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते, तो कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को इस वीरान इलाके में डाल दिया जाए। ये ख्याल आते ही हजरत हाजरा ने अपने शोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल और पथरीले इलाके में छोड़ दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा कि हाँ ऐ हाजरा, ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने जब ये जवाब सुना तो उनके अंदर अचानक हिम्मत आ गई और उन्होंने तेज आवाज में पुकार कर अपने शोहर से कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वो मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूँ। इतना कहकर हजरत हाजरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने शोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट धीरे धीरे हजरत हाजरा से दूर होता जा रहा था। अचानक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा तो हजरत हाजरा की निगाहों से शोहर का ऊंट गायब हो गया और बीबी हाजरा उसी जगह पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुड़कर देखा तो उनकी बीवी हाजरा अब उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ऊंट को उसी पहाड़ के नीचे रोककर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह, आप ही के हुक्म पर मैंने अपने बीवी बच्चों को इस बंजर और वीरान जगह पर डाल दिया है। ऐ अल्लाह, यहाँ ना पानी है ना दाना, मुझे नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह, तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमाना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हजरत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र के बादशाह की बेटी और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हजरत हाजरा खामोश अपने बच्चे को गोद में लिए झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सियाह पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। दोस्तों, वो क्या मंजर होगा कि जब बीबी हाजरा रात के अंधेरे में इस वीरान जगह पर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होगी। आसमान के सितारे भी आज बीबी हाजरा की बेबसी देखकर रो दिए होंगे। चांद भी सोच रहा होगा कि ये कौन औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। काले सियाह पहाड़ भी बीबी हाजरा को देखकर हैरान होते होंगे कि ये कैसी परेशान औरत है जो इस वीरान इलाके में अकेली बैठी है। इस इलाके में तो चिड़िया भी पर मारने नहीं आती। यहाँ दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ये बेचारी बेबस औरत कौन है कि जो अपने बच्चे को लिए बैठी रो रही है? दोस्तों, ये हमारी माँ बीबी हाजरा थी कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है, वो तो बेचारी छोटी सी मुसीबत देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन बीबी हाजरा को अल्लाह ने क्या सब्र दिया होगा कि वो इस वीरान इलाके में अकेली रात के अंधेरे में बैठी थी। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। हजरत हाजरा बेचारी तन्हा जान उस वक्त बैठी आसमान को देख रही होगी और सोच रही होगी कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया।
जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फ़िलिस्तीन चले गए तो हज़रत हाजरा बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूँगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हज़रत हाजरा अकेली अपने बच्चे इस्माइल को लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थी। रात का अंधेरा था, हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हज़रत हाजरा आसमान को देख रही थी और आंखों में आंसू भरे थे। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रही होगी कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हज़रत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा हुआ रखा था, उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वो पानी ख़त्म हो गया और फिर हज़रत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हज़रत हाजरा को पहले से ही पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसीलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को ज़मीन पर लिटाकर सामने सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी नज़र आ जाए, लेकिन पानी कहीं नज़र न आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गई कि शायद उधर से कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में से कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन आज इस मक्का की सियाह और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ जो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हज़रत हाजरा आंखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी का एक कतरा ही मिल जाए ताकि मैं अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं, लेकिन वहाँ तो हर तरफ सूखा ही पड़ रहा था। हज़रत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, इसीलिए वो तो बचपन से महलों में पली बड़ी थी, शहजादियों की तरह थी। उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल घड़ी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा एक बार सफ़ा पहाड़ पर दौड़ते हुए जाती कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, और फिर दौड़ते हुए मरवा पहाड़ पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बच्चे का ख्याल आता तो दौड़ते हुए अपने बच्चे को देखने आती कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेजी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का के पहाड़ों को जला जलाकर आग बना दिया था। बीबी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा ये मासूम बच्चा रो रहा था और वो बेबस माँ हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी तलाश कर रही थी। आखिर हज़रत हाजरा हार मानकर सफ़ा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची। हज़रत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज़ इस बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वो अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की ये तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में ये बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिर हज़रत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इसी पहाड़ पर पड़ी पड़ी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस माँ बेटों की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हज़रत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसीलिए परेशान होकर सर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गई। बीबी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है
اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت ہاجرہ جلدی سے جھوپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی